Okay, welcome everyone. Hope all of you are doing good. Okay, so the intention or motive behind starting this sessions is to address all the concerns that you people have with respect to where IT is heading towards. With addressing all the AI technology panics that has been created in the market, क्यों AI technology सीखना is very necessary to get any kind of job in market right now. Not only IT के तक संबंध नहीं है ये. This is extended to any kind of job where computer is involved. जहाँ जहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी में जहाँ कंप्यूटर यूज हो रहा है, AI आता है, उनको जॉब. जिनको AI नहीं आता उनको जॉब नहीं है. तो ये नया कुछ नहीं है, नया कुछ चेंज हो रहा है ऐसे कुछ नहीं है. IT industry has been evolving like this. पहले मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, देन पर्सनल कंप्यूटर, देन केम टू लैपटॉप. ऑल दिस ऐसे इवॉल्व होते हैं. टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती है, लैंग्वेजेस इवॉल्व हुए हैं, वैसे हमारा वर्क भी इवॉल्व हुआ है. तो जो इसको चेंजेस को अडॉप्ट किए हैं उनको क्या है, देर आर गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. ठीक है. तो ये जो AI रेवोल्यूशन आया है या चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज टू द हाईएस्ट लेवल. ऐसे चेंजेस, ऐसे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इतने फास्ट पेस पे पहले कभी नहीं आए. ठीक है. तो नाउ इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड और इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट इज योर फ्यूचर इन IT नाउ, so instead of doing all those things, you change your mindset. Okay. So now you need to adapt to the technology. You need to adapt to the skills which industry demands now. Okay. जो पहले जो अब जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके साथ साथ AI स्किल्स मैं कैसे ला सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ. हाउ कैन आई अपग्रेड एंड कीप माई सेल्फ अप टू डेट फॉर द जॉब मार्केट. राइट. सो राइट नाउ जॉब में जो प्रोफाइल्स फिल्टर हो रहे हैं, देर इज नो ह्यूमन बिहाइंड इट. दीज आर ऑल बीइंग डन बाय AI एजेंट्स. सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है. AI agents are trained to filter only profiles with specific keywords. अगर वो keywords या skills तुम्हारे resume में है, then your profile is shortlisted for further rounds or further steps in the recruitment process. If no, then your profile is no chance of getting it shortlisted because there is no human behind shortlisting. It's all AI and it is programmed to do so. Right? So you need to know what are those skills that I need to upgrade myself. What are those skills that I can gain to, what are those keywords that I can add in my profile so that my resumes will get shortlisted for the jobs, interviews. Okay. So ये सब करने से पहले just let me take you through how my journey has been through this IT industry. So I have around 19 years of experience in the IT industry right at this point of time. Okay. So how did I start? Okay. I'm also a BE graduate, like you all are there right now and working, right? Studying. Okay. तो मेरा भी वैसे ही BE ग्रेजुएशन हुआ. जब पास आउट होने का टाइम आया 6th, 7th और 8th सेम में ह्यूज रेसेशन चल रहा था जॉब मार्केट में. नो जॉब्स एट ऑल. आई वॉज इन द सेम सिचुएशन दैट नाउ जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, जो पैनिक सिचुएशन उनके अंदर है, हमारे अंदर भी वही था. बिकॉज देयर वाज अ रिसेशन, नो जॉब्स, नो पोर्टल वाज शोइंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, नो कंपनी वाज कमिंग टू द कैंपस रिक्रूटमेंट्स. इट वाज नॉट दैट आई डिड नॉट डू वेल. आई वाज एग्रीगेट मेरा 79-80% था थ्रू आउट दिस 8th सेमेस्टर. So I was confident that I will get some campus selection, but that didn't happen. There was no company which turned to our college. Okay, then
वो हो गया, वो फेज हो गया, पास आउट हो गए, डिग्री आ गई, डिग्री ले ली। अभी क्या करना है? These 4 years I have studied like hell. I've dedicated like nights, days for towards that to get that degree because क्योंकि ये डिग्री लेने के लिए, ये पढ़ाने के लिए, पढ़ाई पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे माँ बाप की बहुत ये था उसके पीछे। तो स्ट्रगल था उनका, मैंने देखा था वो। तो आई वांटेड, डेस्परेटली वांटेड टू गेट अ जॉब। ठीक है। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर आई ग्रेजुएटेड? I myself and my friends landed into where normally कर्नाटका के बच्चे कहाँ लैंड करते हैं? बैंगलोर में। That's the only destination after you pass out. Okay? So हम लोग भी चले गए बैंगलोर with a set of 25 to 30 resumes printed out with all our degrees, with all the Xerox copies of degree, एक बड़ा सा फोल्डर बना के चले गए। देखते हैं, ट्राई तो करेंगे, ऐसा तो बैठ नहीं सकते ना, तो ट्राई करेंगे। तो we went. We landed in Bangalore. Bangalore was a big city. We were coming from a very small town. So Bangalore was very, very fast for us. We saw people running for jobs. It was very fast life. So it was very new for us. फिर भी हमने करेज गैदर किया, पीजी में गए, पीजी में थोड़ा रैगिंग झेली बच्चों के साथ। तो फिर बाद में सारे रेज्यूम्स उठाए, करेज किया कि चलो जाएंगे, देखेंगे। There was no online or job opening anywhere. So we decided we will go to company, drop our resume, try to find and catch hold of some HR, hand over our resume, request them for any job openings so that we can get on to at least that first step of an interview. कोई तो पूछे। तो हम लोग चले गए, मेरे और कुछ मेरे दोस्त। तो वी वेंट टू द कंपनीज, राइट। तो कंपनी के अंदर तो कदम रखने नहीं दे रहे थे, बाहर सिक्योरिटी वॉज द ओनली ऑप्शन। ओके, सो वी वेंट टू द सिक्योरिटी गार्ड। वी सेड ओके, हम लोग वी आर बी ग्रेजुएट्स। बी ग्रेजुएट सुनते ही उसका मुंह बन गया, क्योंकि देर वेर thousands of BE graduates coming and dropping, talking to them. So they were already frustrated. Okay. तो हम लोगों ने कैसे तैसे कन्विंस किया that this is our resume, we are looking for a job, can you please help to pass on our resume to the HR or the concerned person. तो उसने हैप्पीली ले लिया, मतलब ले लिया कैजुअली, लेके यू मेंशन योर मोबाइल नंबर, यू मेंशन योर ईमेल आईडी। ओके, तो बोला हाँ ओके ओके आई विल पास इट ऑन करके बोला। तो हम लोग थोड़ा हैप्पी हो गए कि चलो सिक्योरिटी तक तो पहुंचा, उसके बाद जाएंगे देखेंगे आगे जाता है क्या। The moment we turned back, he put the resumes in the dustbin. Dustbin was full of resumes. We, our, क्या बोलते हैं, we सारे 4 साल की मेहनत डस्टबिन में जाती हुई दिख रही थी। सो वी, मोटिवेशन का अता पता नहीं था। तो वी समहाउ ओके, एक एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे खराब देखते हैं बाकी। लाइक दैट वी ट्राइड फॉर सो मेनी डेज, सेम सिचुएशन एवरीवेयर, बिकॉज रिसेशन चल रहा था, देयर वाज नो जॉब एट ऑल। तो क्वेश्चन ही नहीं है कि कोई कंसिडर करता। ठीक है। देन वी, आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, वी डिसाइडेड ओके अभी तो यहाँ नहीं हो रहा है, जॉब है ही नहीं और रह भी नहीं सकते बैंगलोर में, हाँ, तो वो उल्टा खर्चा। तो व्हाट वी डिड, वी, आई केम बैक, नॉट वी, मेरे थोड़े दोस्त रह गए, आई केम बैक टू, वापस मेरे होम टाउन। ठीक है। देयर आई स्टार्टेड, आई ज्वाइंड NIT कोचिंग इंस्टीट्यूट एज अ फैकल्टी मेंबर। ओके, सो NIT में फैकल्टी मेंबर कैसे ज्वाइन। माई फर्स्ट सैलरी वॉज 2500 पर मंथ। I started with that salary. Okay. 2500 was not good enough. Right? इंजीनियरिंग का कहाँ 25-30 हजार का सपने देखे हैं, अभी 2500 लेके स्टार्ट किया जॉब, समथिंग बेटर देन नथिंग करके स्टार्ट किया। ठीक है। फैकल्टी का जॉब करते करते गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर।
देन इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर. एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग 3 डिफरेंट जॉब्स. ओके, सो बोलते हैं ना कि एनी एक्सपीरियंस दैट यू हैव विल नॉट बी वेस्टेड. सो व्हाट आई गेन्ड हियर, I was just teaching, but what I gained confidence in facing the people. I also realized that मैं अच्छा समझा सकती हूँ बच्चों को. I can deliver the lectures in a effective way. बच्चे समझ रहे हैं मुझे, तो वो मुझे जानने को मिला during that my teaching career. Stage courage आया. How you can go and face doubt solve करना. अच्छे भी बच्चे थे, बहुत शरीर भी बच्चे थे, सबको हैंडल करना, ये सब एक दिस वाज समथिंग न्यू एक्सपीरियंस, राइट? सो आई गेन दैट एक्सपीरियंस, दैट वाज वेरी गुड, दैट एडेड अप टू माय स्किल्स. ओके, फिर क्या हुआ, शादी के बाद बैंगलोर आ गए. बैंगलोर में आई स्टार्टेड अगेन अ फ्रेश स्टार्ट. ओके, आई रिजाइंड ऑल दोज जॉब्स, आई केम टू बैंगलोर, अगेन hit the same market. लेकिन by then I was confident that okay, I am good in handling people, I am good in handling situations. Okay, तो मैं क्या की, I मेरे फ्रेंड्स के रेफरेंस के थ्रू एक टेस्टिंग कोचिंग ज्वाइन की एज टू अंडरस्टैंड हाउ द टेस्टिंग इज डन. ठीक है, तो वो कोचिंग सेंटर में टेस्टिंग सीखा, मैनुअल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ऑल दिस टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आई लर्न देयर. ओके, उसके बेसिस पे जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट किए. ठीक है, सेम सिचुएशन फिर से, थोड़े महीने ऐसे ही स्ट्रगल कर किया. जाती थी, रेज्यूम देते थे, रेज्यूम ऑनलाइन भी अपडेट करते थे, जाते थे, फेस करते थे, कभी कभी रिजेक्शन, कभी कभी अंदर भी नहीं लेते थे ऐसे. तो दैट रिसेशन फेज वाज स्टिल गोइंग ऑन, राइट? तो वैसे देन once I was coming back from one interview, I think I sat on a bus stop. ओके, बस स्टॉप में बस का वेट करते बैठ गई. ऐसे लग रहा था कि क्यों मैं वेस्ट की इतना 4 साल, क्या मिल रहा है मुझे, इसमें कुछ भी है ही नहीं. मतलब दूसरा कुछ कोर्स कर रहे थे तो दूसरे टीचिंग लाइन में तो जा सकते थे ना, बीएड वेड करके. व्हाई डिड आई डू इंजीनियरिंग? तो ऐसे क्वेश्चन करने लगी कि मैं एम आई गुड इनफ, 80% एग्रीगेट लिया, पढ़ाई में अच्छी हूँ, फिर लेकिन जॉब क्यों नहीं मिल रही है, व्हाट इज लैगिंग? दिल से दुआ निकली कि मैं कुछ करना है, तो रास्ते आसान कर. बस कितने 2-3 बस मिस किया, मैं वो इस बस स्टॉप पे बैठी थी, 2-3 बस मिस किया, लेकिन मैं उठ के बस बोर्ड करने नहीं हुआ मुझे, क्योंकि आई वॉज कंप्लीटली डाउन. बोलते हैं ना, सारा मतलब सब कुछ ट्राई किया, बेबस होके बैठ गए थे बस स्टॉप पे. तो दिल से एक पुकार निकली कि मुझे जॉब दिला दे, कैसे भी दिला दे, जॉब दिला दे. वहां से उठी, घर आई, थोड़े दिन में, इट वॉज नॉट मेनी डेज, द डे फ्रॉम दैट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एम्फेसिस. ओके, मेरा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो, आई वेंट देयर फॉर एन इंटरव्यू. वो इंटरव्यू में लकीली सेम थिंग, ऐसे ही कि जॉब इंटरव्यू आया है, इंटरव्यू तक तो आया, तो गई मैं रेज्यूम लेके, सब प्रोफाइल सर्टिफिकेट्स लेके गई, विथ सेम होप दैट समथिंग विल वर्क आउट. गई एम्फेसिस में, वो जो टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला था, उनका कोई इशू चल रहा था, वो लोग नहीं आए, जो लीड लेने वाला था टेक्निकल इंटरव्यू नहीं आए, सिर्फ डायरेक्ट मैनेजरल राउंड हुआ. वो मैनेजर टेक्निकली साउंड नहीं था, लेकिन मैनेजरल राउंड ने उसने मुझे सिर्फ हाउ कॉन्फिडेंट आई एम, मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये देखा उसने. So by that time, my past experience of teaching, of explaining the concept to students, बहुत काम आया मुझे वो मैनेजरल राउंड. I explained him how functional testing is done, how regression testing is done, what are the bugs we can find with functional testing, regression testing, how we can address it. Everything I explained him properly.
तो उसने मुझे इंटरव्यू के बाद बोला, कैन यू वेट आउटसाइड, माई HR विल टॉक टू यू। मुझे, आई वॉज लाइक, क्या बोल रहा है? आई वॉज यूज टू हियरिंग दैट, ओके वी विल गेट बैक टू यू, यही सुनने मिल रहा था मुझे सारे अभी तक। वी विल गेट बैक टू यू मतलब तब तक मुझे पता चला था कि कुछ नहीं होने वाला है, गेट बैक होंगे नहीं कभी, ठीक है ना। तो वो तो समझ में आ गया था, लेकिन इसने बोला यू वेट आउटसाइड, माई HR विल टॉक टू यू। कुछ उम्मीद जागी कि अच्छा, शायद शायद कुछ होगा, HR कुछ बोलेगा। तेरे वे बाहर आके बढ़ी, HR का वेट करते। HR बुलाई, HR ने भी कुछ सवाल पूछे, क्वेश्चन किए, देन आई आंसर्ड हर कॉन्फिडेंटली। ये सारा एक्सपीरियंस काम आया मुझे, टीचिंग एक्सपीरियंस वहां पे। आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन हर, आई वॉज एबल टू टेल वॉट आई एम लुकिंग फॉर। वो होने के बाद उसने बोला व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। मुझे बोला वेयर आई वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन। शी इज आस्किंग मी सैलरी, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑन सैलरी फ्रंट। ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने बोला था फर्स्ट अगर जॉब मिल रहा है तो 3 लाख का पैकेज चल रहा है, 3 लाख बोल दो। तो मैंने बोल दिया 3 लाख, विथ नो होप्स दैट आई शी विल एग्री। शी सेड ओके, यू वेट आउटसाइड, आई गेट योर ऑफर लेटर। आई वॉज लाइक, कहीं कहीं चली गई मैं। वो सारे स्ट्रगल्स, वो सारी मेहनत, वो सारी जो इंजीनियरिंग में दिन रात पढ़ाई की थी, माँ बाप के स्ट्रगल्स, सब कुछ एक वहां पे लॉबी में ऑफर लेटर का वेट करते हुए सारे आ रहे थे नजर के सामने। मुझे लग रहा था कि कुछ तो फल मिल रहा है, राइट। तो उसने HR ने ऑफर लेटर दिया, हैंड ओवर किया। उसको बार बार मैंने देखा कि ये सच है, एम आई रियली होल्डिंग माई ऑफर लेटर। बहुत खुशी हुई थी, इतनी खुशी कि देखो, जब इस जिंदगी में कुछ मिल जाता है ना बिना मांगे या बिना मेहनत किए, उसकी कदर नहीं रहती। जब स्ट्रगल करके मेहनत करके कोई चीज मिलती है ना, उसकी उसकी वैल्यू बहुत रहती है। दैट ऑफर लेटर वॉज दैट वैल्यू फॉर मी, ओके। तो वो ऑफर लेटर लिया, घर आई, सबको बताया कि ओके, बहुत रोई, ठीक है, आई गॉट जॉब कर। तो दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड इन एम्फेसिस इन 2006 नवंबर, राइट। सो वहां पे टेस्टिंग रोल ज्वाइन किया एज अ टेस्टर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। वहां पे मैंने 6 years 7 months काम किया इन एम्फेसिस। आई वेंट ऑन टू बिकम अ मॉड्यूल लीड, आई वेंट ऑन टू बिकम अ प्रोजेक्ट लीड। बहुत ग्रोथ मिला, स्पॉट अवार्ड मिले, अप्रिसिएशन मिला, बेस्ट एम्प्लॉय अप्रिसिएशन मिला, अवार्ड मिला एम्फेसिस के थ्रू। देन HP टुक ओवर द कंपनी। HP में स्टोरेज प्रोडक्ट्स, स्टोरेज और बैकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादा, वहां पे प्रोजेक्ट्स ज्यादा आ रहे थे। देन आई वॉज फेड अप ऑफ डूइंग द सेम थिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट स्विच, मैनुअल टेस्टिंग कब तक करते रहेंगे। तो स्टोरेज सीखा, स्टोरेज सीख के उस प्रोजेक्ट में गई। तो वो प्रोजेक्ट करने से मुझे EMC स्क्वायर, विच इज अ कोर स्टोरेज एंड बैकअप टेक्नोलॉजी, जो कोर स्टोरेज का कंपनी है, वहां से कॉल आया। स्टोरेज और बैकअप टेक्नोलॉजी पे काम करने मिला। तो दिस इज अ कंप्लीट स्विच फ्रॉम मैनुअल टेस्टिंग रोल टू अ स्टोरेज एंड बैकअप SME, ठीक है। दैट्स हाउ यू नीड टू अडॉप्ट टू द टेक्नोलॉजी। जो चाहिए जॉब रोल में, वो अडॉप्ट करके चलने वालों के लिए ही जॉब है IT में, ठीक है। तो आई स्टार्टेड माई करियर इन EMC, worked there for as a storage and backup SME for again 6 years 7 months. There I got to know that that is a cloud technology which is on boom now. Okay, so there is a AWS cloud, something called as AWS cloud. The storage and backup servers that I am managing, that same management I can do on cloud. Okay, तो मुझे ऑन प्रेमाइज में मैनेजमेंट करना आता था, आई डिडंट नो हाउ टू डू इट ऑन क्लाउड।
तो मैंने वो सीखना स्टार्ट किया। क्लाउड का अच्छा जॉब मार्केट है तो क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखेंगे। देन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूडेमी ऑन द कोर्सेस। ठीक है, तो आई गेन द नॉलेज, आई गॉट सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन ऑल्सो ड्यूरिंग माई ऑन जॉब रोल। ठीक है, डोंट सिट आइडल, डोंट गेट इन टू द कंफर्ट जोन। ओके, कंफर्ट जोन में आ गए तो यू आर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी जब तक रखेगी तब तक रखेगी, कंपनी जब बोलेगी जाने के लिए तो जाना पड़ेगा। वर्क फॉर द जॉब नॉट द कंपनी। ओके, सो तो स्टोरेज क्लाउड टेक्नोलॉजी सीख ली। तो वो टॉक क्लाउड में प्रोजेक्ट्स ज्यादा उतने खास नहीं थे क्योंकि क्लाइंट रोल था, तो वहां पे ज्यादा क्लाउड पे एक्सपोजर नहीं मिला। देन अगेन आई स्विच्ड, आई ज्वाइंड आईबीएम। ओके, आईबीएम एज अ क्लाउड रोल, ऑन अ क्लाउड रोल। ओके, तो मैंने सीखा जी एडब्ल्यूएस था, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट मिला गूगल क्लाउड पे। क्लाउड क्लाउड तो क्लाउड तो एडब्ल्यूएस सीखा है, उसमें सर्टिफिकेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रोजेक्ट मिला जीसीपी क्लाउड। तो देन अगेन आई टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। एक क्लाउड तो सीखा है तो किया है थोड़ा बहुत काम, तो नाउ इट इज another like a different cloud and something new to learn about। तो मैंने वो सेम कॉन्सेप्ट जो AWS क्लाउड के सर्विसेज के कॉन्सेप्ट थे जीसीपी पे अप्लाई किया, और इट डिडंट टेक मी मच टाइम टू गेन दैट एक्सपर्टीज एज वेल। जीसीपी क्लाउड सर्टिफिकेशन भी किया। आई वॉज देयर विथ IBM फॉर 2 years ड्यूरिंग द कोविड। I went to office only two times during my entire 2 years of span. One for joining, onboarding, one to collect laptop, and the third one was for exit formalities. That's all. COVID में गई नहीं office. Then I got an opportunity from TCS. Okay, so TCS में मुझे opportunity मिला. I joined TCS in 2022. तो अभी TCS के साथ काम कर रही हूँ. Okay, I am based out now in Malaysia, working as a cloud consultant, working on AWS cloud again. Okay, I'm helping the clients to move on to cloud, right? Doing migration, doing the architecting the solutions and all those things. Okay, so अभी क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहा है? There is AI that has come into picture. Okay, so it is a AI technology. So also TCS, पता है TCS will never do layoff. It's a very stable company, but TCS has also done layoffs. ऐसे वो बिजनेस तो बिजनेस चलाना है ना, तो सब कुछ एआई पे मूव हो रहा है। दे डोंट नीड सो मेनी पीपल टू डू द मुंडेन रूटीन टास्क, सो ऑब्वियसली ले ऑफ होंगे। ओके, दैट्स हाउ TCS also started doing a layoff. Right now they are doing a layoff, but parallelly they are putting in lot of efforts to upgrade their own existing employees. Lot of training programs are going on. They are putting in tremendous amount of effort to upskill their existing employees. Those who are adapting to those changes, learning, upgrading themselves, applying their experience, and using AI to bring in some business to TCS are the ones who are most valued. सेफ है उनका जॉब, मतलब सेफ मतलब बोल नहीं सकते, है। ठीक है, तो what is the intention behind making you go through this entire long lecture? You need to understand that कभी भी कोई भी IT इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इज नॉट एक स्किल सीख लो और उसी पे काम करते रहो, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इफ यू डू दैट देन यू आर एट द पिटी ऑफ अ एम्प्लॉयर, वो कभी भी आपको जाने के लिए बोल सकता है। You have to be always market ready. You need to know what is what is there in market running right now, and you need to upgrade those skills. Not necessarily that you have to keep changing job, you need to keep on switching the jobs, वो जरूरी नहीं है, लेकिन you need to be aware what is the market right now outside. अगर मेरे जॉब को कुछ होता है then
am I good enough to get another job? ठीक है? So that is how it should be. Like, you need to be always prepared. You need to adapt to what is happening in the market, and you need to come up with those skills. Groom yourself. Don't waste your weekends at all. Whatever time you have, उसमें अपग्रेड करना स्टार्ट करो. अगर स्टार्ट नहीं किया है, करो. दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है? तो हम इस सेशंस में क्या करेंगे? इस सेशंस में एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करें. ठीक है? व्हाट इज एआई, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग माय जॉब रोल, हाउ व्हाट आई कैन डू टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट. ओके, गॉट इट? So now you tell me, like, this is not a new thing that has come in, right? You अभी तुमको पता है कि AI is right now booming in the market, right? So you tell me from your end, your experience, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या करना चाहते हो, how is your life getting impacted with AI अगर है, and what are you doing, what are the steps that you are taking to learn AI टेक्नोलॉजी या जो भी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं. We'll start with one by one. Samir, you are already working with TCS. Yes, Henry. So you are already working with TCS. You know what is happening in TCS, and you are Yes, I do. upgrading yourself. TCS skills upgrade कर रहे हो. I'm constantly seeing your post in LinkedIn. That's very good. Uh, You have to do. yes, Henry. That is Yeah, required. I am currently pursuing cloud computing courses and learning about AWS, Microsoft Azure, and GCP. So my goal is to become a cloud engineer or a cloud architect in future, Henry. Okay. So what about AI? What are you doing with respect to AI? What is AI for you? Yeah, as AI boom is going on now, so we need to adapt to it. हम उसको अडाप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो उसके बिना हम नहीं रह सकते फ्यूचर में, क्योंकि सब एआई मार्केट ही ले ले जाता है। क्योंकि अब फ्यूचर देखेंगे तो सब ऑटोमेशन में ही हो जाएगा, लाइक कोडिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग, सब कुछ एआई एआई पे ही डिपेंड हो सकता है। Say you are upgrading yourself as a cloud engineer, right? So there are many AI agents right now who are doing a better cloud engineering, जो day-to-day task हैं, they are able to do it, right? So what is that additional added advantage or added skills that you are bringing in along with the cloud engineering skills that you are building, right? उसमें थोड़ा AI add करो, AI सीखो, AI tools सीखो, how you can use that in cloud technology. Cloud with हाँ, AI, हाँ, best combination. हाँ, ओके, आई विल वर्क ऑन। ठीक. We'll do that. We'll, during this course of these sessions, no, we'll try to learn. We'll try to see what best can be done, right? Okay. Next you volunteer, I'll call out. Sabah, what are you doing better? मैं भी अब क्लाउड पे ही वर्क मतलब सीख रही हूँ। हाँ. अभी उतना ये नहीं हुआ है, सीख रही हूँ अभी। Right now, what you are doing? What job role? डेस्कटॉप सपोर्ट रोल। What's your background? पढ़ाई? BSc PCM। Okay. So you are working with Wipro for some distance learning course also, right? Yes, MTech in computer science। So you're waiting for that to get completed. By when it Yeah, is completed? in 1.5 year it will be completed. Oh. Now I'm in 6th semester. Still 3 semesters are left. Parallel, you have time. So parallel, Yeah. upgrade your skills. Upgrade Yes. your skills in AI, cloud, Mm. so that you will get projects either in Wipro Yes. or be relevant. Upgrade yourself. Yes. Okay, along with your MTech degree. Yeah, sure. That's how you should see. What is AI for you?
like by the help of AI we can save time, and we can like human mistakes will be lesser. We can make things easier, and it supports decision making, and it can work for 24 into 7. Yeah. That's more. This is all I know. Okay, good. We'll see what it is. Yeah. So Alia, एज पर अभी जावा डेवलपमेंट के ऊपर ही चेक कर रही हूँ, तो if I get the opportunity in any organization, so I can contribute my skills. But I also interested to growth in different technologies or as per the market standards like AI. yes. So what are you doing in AI? I mean, you are building some skills in AI. You know what is AI? Actually, it is only basic things I know, but I didn't study deep in that. Oh, no problem. We'll get onto it. Yeah. You're working with in a BPO, right? Support call. Yeah. Yes. But Yes. you are a engineering graduate. Yes. We'll see what best can be done. Okay. Okay. Hafiz, See, as you know, I'm currently studying in final year. The next step for me to land into the market only direct. by As when? I know to use the AI tools is only of ChatGPT and Gemini, which make my work easier. But inshallah, from now on, I'll try to get some knowledge of it and try to learn them. That's very much important for you because you are at the verge of stepping into the job market, right? तो तुम्हें Yes. सीखना और फास्ट पेस पे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. As I told you, Okay, Chachi. profiles will not get shortlisted if they don't have specific keywords in the profiles, right? And not only, see, you don't have to concentrate much on how is the market. You first concentrate on building up your skills. Tension छोड़ दो. Don't get panic. Don't worry about what is happening. You worry about what best you can do to upgrade yourself. For now. Okay. So try to Okay, Chachi. work on many projects in AI. Okay. So we'll start building. We'll get on to that. How freelancing can be done. How you can contribute as a freelancer and get to work on some projects. Okay. Okay, Chachi. We'll get to that. Okay. Barid. Hi everyone, myself Mohammed Barid. What I know about AI is that it is a trained model uh, which we train by giving us a bunch of data uh, so that the model can recognize the similar data and give the respond, and it responds to that similar data. Uh, for example, I have worked on a project skin diagnosis by using AI. In the thing, hmm, by using a bunch of skin disease photos, uh, we know that the disease is the similar disease. We can get to be detect before going to the doctor. We can detect that what type of disease we have it. So that's all I know. Good thing, no? That's a very good Yeah. thing. That's how AI is being developed, right? Yes. So it is being fed with lot of data for it to recognize the patterns and predict the output. Output. Okay, that is training the models. That's what is AI. You are stepping into that. No, you are in engineering. You are pursuing your PE. Pursuing BTech engineer. Okay. Student, first sem, second sem. PhD. Second year. Adit, फर्स्ट सेमेस्टर है तो जितना ज्यादा नहीं मालूम है AI के बारे में. your branch is AI, no, beta?
है, लेकिन अभी तो सिर्फ सी लैंग्वेज सिखा रहे हैं हमको। सी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, देखो सी whatever is happening in the college, you just forget about it. That is one part of it. 50% उतना कॉन्सेंट्रेट करना कॉलेज में जो चल रहा है, क्योंकि मैंने बीई इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड में, उसका 1% भी नहीं यूज कर रहा। बाहर से दिन नॉलेज रात मेहनत करके यूज नील है, ठीक है। जॉब जहां पे करना है, जिस स्किल में करना है, उसके तरफ 50% तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन रहना। The sooner you start is better for you. इंशाल्लाह। Okay. Now the future is nobody will wait for degrees or percentage. Nobody will see. No company will see that. Okay. They see only skills. If you are able to address problems, if you are able to solve problems, pain points, they'll take you without your degree. For that, you don't have to wait for your graduation completion and all. Then I will see what can be done. No. Start now, this moment. Okay, do freelancing, start contributing. अच्छा है, you have good amount of time. So start learning, get a mastery, hands-on into that technology, and then start contributing. That's the best thing that you can do for your career. Okay, so we got to know about all of your background and your ambition and all, right? So what next? AI. We are talking about AI since so long, right? So what exactly is AI? What is AI? AI stands for what? Artificial intelligence. Artificial intelligence. So what is it? What is it? Artificial intelligence. It's man-made. Artificial. Man-made. Artificial. Not real. Yeah. It's not real, right? Intelligence. अक्लमंदी जो आर्टिफिशियल है, राइट? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, जो रियल नहीं है, ह्यूमन लाइक नहीं है, ह्यूमन नहीं है, ठीक है। So what they are doing is they are building this intelligence, human like intelligence in machines, correct? That is artificial intelligence. How a machine can adapt to this intelligence and then come up with the solutions. Okay, जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, जो मशीन में बिल्ड हो रही है। हम लोग कैसे अभी ह्यूमंस, रियल इंटेलिजेंस कैसा आता है? रियल इंटेलिजेंस हाउ वी विल स्टार्ट बिल्डिंग इट? जैसे बेबी बॉर्न होता है, तो विल इट नो दैट व्हाट इज देयर अराउंड इट? वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कई चीजों को? उसको पता है कि व्हाट इज कैट, व्हाट इज डॉग? हाँ, No. it will not know, right? It will not even be able to recognize fan and all those things. So material things. How we will train it? Train the baby. कैसे हम लोग सिखाते हैं बच्चों को? उसकी पिक्चर्स दिखा के उसको बताते हैं कि दिस इज कैट, दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज डॉग, दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है। कलर्स बताते हैं। ऐसे वी विल ट्राई टू बिल्ड इट्स इंटेलिजेंस। तो वो क्या यूज करता है? अपना दिमाग यूज करता है टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन, राइट? So it will start learning, gaining that information, and it will try to retain in its brain. बेबी क्या है, अपने ब्रेन में, मेमोरी में स्टोर करना चालू करता है डेटा। विच डेटा? ट्रेनिंग डेटा दैट वी आर गिविंग इट। जब उसको बताते हैं कि ऐसे है, फैन ऐसे है, ऐसे बोलते हैं ना, चंदा मामा कहाँ है? कहाँ देखता है? नीचे देखता है, ऊपर देखता है? ऊपर देखता है, क्योंकि बताते हैं हम लोग कि ऊपर है, चंदा मामा ऊपर है, फैन कहाँ है? ऊपर देखता है ना? तो we are training the baby, the human. Likewise, we are training the machines. With what? With data. And this data is not small amount of data. It's a huge amount of data.
We are telling it how the cat should look like, how the dog should look like, its features. Different animals के features, how it is. We are feeding it with numerous amounts of pictures of that particular animal just for it to recognize the animal in a right way. We are training that machine to recognize the pictures, to recognize the patterns, right? बच्चों को किंडरगार्टन में डालते हैं तो ABC पढ़ाते हैं, ABC पढ़ाते हैं. उसको स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाते हैं? They'll put some dots and they'll ask the kid to trace it so that it will form A. Right? You have seen, right? They'll put dots and so the child should trace it. So they will form that A letter. Right? So likewise, machines are fed with these kind of patterns. This pattern matches up to this word. It will start like this. Then going on, they'll start feeding more and more data. जैसे हम बच्चों को किंडरगार्टन से LKG, UKG जाते हैं तो वर्ड्स फॉर्म करना सिखाते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाते हैं. So likewise, models are trained. ऐसे ही वर्जन्स आते हैं. The lower version would have been trained on a lesser amount of data. इसलिए वो लिमिटेड काम कर सकता है. बच्चों को अभी ABC बोलो तो बता देते हैं, लेकिन अब यू आस्क देम टू डू सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किंडरगार्टन बच्चे को नहीं बता सकता, क्योंकि इट इज नॉट ट्रेन्ड ऑन दैट. बच्चे को वो पता नहीं है, उसको डेटा नहीं मिला है उसका, है ना. तो इट विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट. बता नहीं पाता है. तो वैसे ही मॉडल्स भी वो नहीं बताते हैं. बेसिक मॉडल्स विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज दे आर ट्रेन्ड ऑन ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा. राइट? सो लाइकवाइज कैसे हम लोग बच्चे का दिमाग को स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, वैसे मॉडल्स को स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, with feeding it with lots of data. Right? ChatGPT has come is a OpenAI proprietary tool. So it is fed with numerous amount of data. उसका GPT versions बेसिक वर्जन से अभी टॉप वर्जन आया है. तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज बिल्डिंग इट्स मॉडल टू बी मोर एंड मोर एफिशिएंट. जैसे एक बच्चा किंडरगार्टन से LKG, UKG, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, PU कॉलेज, ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे जाता है, वैसे मॉडल्स को ट्रेन करते हैं. That's how they give that upgraded version to the model, because it will be able to do more tasks. It will be more capable enough. ठीक है? तो ऐसे मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है विथ व्हाट? डेटा. सो दैट क्या है, पर्पस क्या है, व्हाई डू वी डू दैट? सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस टू use them as to solve the problems. ठीक है? वो कंप्यूटर का क्यों यूज करते हैं? so that it will do. दिमाग से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है. we depend on computer because it is faster, right? so it can process the data in a more faster way, right, than humans can do. So we use computer. So why are we using AI? It can process and do the same task which we are doing right now, the repeated task, more efficiently. That's why we are using those models. ChatGPT, when we started with the basic model, क्या करता था वो? We give prompt, it was giving the answer, response. Right? उसको उतना ट्रेनिंग मिला था, तो जो भी क्वेश्चन पूछो आंसर देता था. उससे पहले क्या यूज करते? गूगल सर्च यूज करते थे ना. उसमें एक क्वेश्चन पूछे तो क्या देता था वो? एज इफ यू टेक अ बेबी एंड पुट इट इन अ जू, आप फिगर आउट कर लो कौन सा एनिमल को आपको देखना है, ऐसे होता था. एक क्वेश्चन पूछने से hundreds of pages were opening. You figure out which one you want. ऐसे था गूगल सर्च.
लेकिन चैट जीपीटी क्या किया? If you are able to give a proper question to the GPT, it will give you fetch the exact information from the entire Google data and give you the required information only. तो यहाँ पे क्या हेल्प हुआ? मेरा टाइम बच गया, क्योंकि मुझे वो गूगल सर्च के इतने हंड्रेड्स ऑफ पेजेस गो थ्रू करके मेरा रिलेवेंट, मेरा जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो फेच करने के लिए जो टाइम लगता था वो बच गया. It is helping to save my time, right? So we are using ChatGPT for that initially. अभी क्या हो रहा है? अभी क्या कर रहे हैं? It has gone to do that advanced level that it is able to do a coding. इतना लेवल, इतना बेस्ट कोडिंग बनाता है कि which is equal and comparable to the best coder in the industry right now. एक एथिकल हैकर का कंपटीशन होता है, ठीक है? So their companies will invite hackers to find out vulnerabilities in their application or business. Okay? So उसमें वो कंपटीशन में एक विनर आया था, विनर हुआ. He was able to find out maximum vulnerabilities in the application. जब एनालाइज किया उसको विनर को, तो वो दैट वाज अ AI. It was not a human. AI was able to do better job than humans. कोडिंग में भी वही चल रहा है, प्रोग्रामिंग में भी वही चल रहा है अभी. बेस्ट ऑफ बेस्ट कोडिंग इज डन बाय एन AI राइट नाउ. सारे कंपनीज क्या है, एजेंट्स बना रहे हैं. दे आर ट्रेनिंग द मॉडल्स एजेंट्स टू डू प्रोग्रामिंग, राइट? So एक agent is capable of doing not less than 10 people, 10 coders, 10 programmers job. Not less, it is even more. And it will work 24/7. It will not need any holiday or anything like that. तो companies को कहाँ है फायदा? उनका एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एजेंट्स बनाओ. और जो ह्यूमंस, जो वर्कफोर्स है उनका, जो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो स्किल्स अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों बिठा के खिलाएगा? कोई भी क्यों खिलाएगा? मतलब क्यों जॉब देगा उनको, है ना? ऑब्वियसली ले ऑफ होंगे. अगर हम भी कोई बिजनेस ओनर हैं, तो हम लोग को एक ऑप्शन है विच इज वेरी कॉस्टिंग मी वेरी मिनिमम and which is giving me 200% more revenue than given by my employees. तो obviously मैं उसको ऑप्ट करूंगी ना. एम्प्लॉयज को क्यों बिठा के खिलाऊंगी अगर वो एम्प्लॉयज आर नॉट रेडी टू अपग्रेड? obviously I'll ask them to go find out your own way, करेंगे ना. but I will keep the employees who are willing to learn and improvise my automation. ये जो एजेंट्स मैं बना रही हूँ उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए जो इंजीनियर्स कैपेबल हैं, विलिंग है, आई विल कीप देम, आई विल पे देम मोर, क्योंकि दे कम विद दैट माइंडसेट, राइट? मुझे माइंडसेट इंपॉर्टेंट, माइंडसेट, एम्प्लॉयज का माइंडसेट मैटर करता है. तो आई विल कीप रिटेन देम एंड लेट गो द पीपल हु आर नॉट विलिंग टू अपग्रेड देमसेल्व्स. वो हो रहा है आजकल, ठीक है? तो यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता चला, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड ऑन अ मशीन विच इज एबल टू डू टास्क विच वी ह्यूमंस विल डू यूजिंग अवर ब्रेन. उनका ट्रेनिंग होता है. ऐसे जब बच्चों को जैसे ट्रेनिंग करने के बाद एग्जाम्स लेते हैं टू पास देम, किंडरगार्टन में एग्जाम होता है, एलकेजी में एग्जाम होता है, यूकेजी में एग्जाम होता है, टू अपग्रेड देम टू द नेक्स्ट लेवल. वैसे ही मॉडल्स को जब ट्रेन करते हैं उनका भी एग्जाम्स होता है. एग्जाम्स मतलब दे विल एनालाइज द इंजीनियर्स, AI/ML इंजीनियर्स जो हैं, दे विल एनालाइज द आउटपुट दैट द मॉडल इज प्रोड्यूसिंग. ये भी एक टेक्नोलॉजी है. दे विल एनालाइज हाउ बेस्ट इज एबल टू डू द टास्क जॉब. उनका थरो एनालिसिस, थरो उनका एग्जामिनेशन होने के बाद देन दे विल पब्लिश पास और फेल फॉर दैट मॉडल.
पहले इंटरनल एम्प्लॉयज को रिलीज करते हैं वो मॉडल, वो वर्जन, दे विल टेस्ट एंड देर आर ऑटोमेशन बिल्ड। ह्यूमंस की जैसा प्रॉम्प्ट देते हुए नहीं बैठते हैं वो लोग, दे हैव ऑटोमेशन फॉर दैट, दे विल टेस्ट इनपुट्स और आउटपुट्स रिलेवेंट है या नहीं। वो सभी एग्जाम्स पास होने के बाद वो वर्जन क्या है पब्लिक के लिए रिलीज होता है। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ओके, सो एआई में मशीन लर्निंग यू हर्ड, AI is a broad topic, right? It has sub technologies or sub sections to it, right? मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, जनरेटिव एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, AGI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है। ये सभी एडवांसमेंट्स हैं जो हो रहे हैं। राइट नाउ वी आर इनटू जेन AI, राइट? वी पास जो बेसिक मॉडल थे जो which were taking our prompts and giving out the outputs, हो गया। Now there are agents which can generate the information. Now there are agents which can tell based on your prompt, which can generate videos, images, everything generate करते हैं। जो हुआ ही नहीं वो बना के देते हैं। It can produce itself, और वो इतना रियल है कि nobody will be able to deny and find out that it is not real. क्या चल रहा है कंटेंट जो आप ज्यादा यूट्यूब में जो कंटेंट आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है या ह्यूमन ने बनाया है पता ही नहीं चलता। बिकॉज जनरेटिव एआई हैज बिकम सो एडवांस, मॉडल्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि इट इज एबल टू मूवीज बना रहा है। Maybe we don't need actors down the line. We need AI रहेगा, वो मूवी बना लो और देख लो खुद ही ऐसे। Next, they are even trying to build general AGI, which is artificial general intelligence, which will be able to think like a human. Which will be able to act like a human. You don't have to even give the prompt. उसको prompt पे देने की जरूरत नहीं। बेसिक जो ह्यूमन जैसे काम करता है उसका ब्रेन वैसे काम करेगा। नेक्स्ट स्टेज इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट। इमेजिन, ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता वो एआई। ह्यूमंस विच दे कैनॉट थिंक ऑफ, वो भी सोच के वो कर देगा। सो दे आर यूजिंग दैट। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जो बीमारी आजकल हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाए, उसका इलाज मिल नहीं पा रहा है, उसके मिलने के चांसेस, उसका इलाज ढूंढने के चांसेस ज्यादा हैं आगे चल के। बिकॉज artificial super intelligent will be so intelligent that it will be able to diagnose the disease and try to give you medicines for that and to cure it. जैसे डायबिटीज का क्योर नहीं है, बहुत से ऐसे लाइलाज बीमारी हैं जिसका इलाज अभी तक ढूंढने में नहीं मिला है ना, लेबोरेटरी में चल रहा है रिसर्च, बट देयर इज नो कंक्लूजन टू इट, देयर इज नो रिजल्ट टू इट। व्हेन यू हैव दिस सुपर इंटेलिजेंस, जो इंसान जो भी इतने सालों पे सोचने मतलब कर रहा है रिसर्च, दैट द सुपर इंटेलिजेंस विल डू इट इन मिनट्स एंड इवन सेकेंड्स। वो बेनिफिट वी आर फोरसीइंग दैट बेनिफिट, उसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। That's where ethical AI will come into picture. Ethical AI मतलब ethically AI को use करना, which is beneficial for the mankind. So that's how ethical AI, वो उस पे भी stress हो रहा है। You implement AI, but implement in a ethical way. ये चल रहा है अभी। hackers are also using AI to hack the systems. They also have access to AI, right? They are using AI but unethically. So why organizations are reluctant in adopting AI at a large scale? Because there might be vulnerabilities.
ऐसे वल्नरेबिलिटीज आ सकते हैं एआई के थ्रू that can impact the privacy of the system. तो उसके ऊपर चल रहा है. So best thing is the how to protect. Use तो करना ही है, there is no option. After using, how to protect it, how to secure that AI infrastructure or AI agents that we are building, उसके ऊपर भी बहुत काम चल रहा है. Okay, so that's how the industry is evolving right now. So वो सब सीख के करने के बाद क्या है, then if we upgrade our skills, then we will be in most demand. So we got to know, right, what is AI. Any doubts? You are able to understand what is AI now? थोड़ा clarity मिल रहा है what is AI? Okay, तो थोड़ा बेसिक फाउंडेशन तो हो गया, समझ में आया what is AI क्या है. तो ये जॉब्स को कैसे रिप्लेस कर रहा है? AI तो क्या है, मॉडल्स हैं जो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, वो काम कर रहा है. मतलब हाउ इट इज रिप्लेसिंग द जॉब्स, व्हाट इज दैट वी आर डूइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस. हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप बीपीओ का जॉब ही लो एग्जाम्पल. क्या करते हैं बीपीओ के लोग, क्या करते हैं, कॉल्स हैंडल करते हैं. ठीक है, कॉल्स हैंडल करते हैं. कोई भी एक बिजनेस है उसका कॉल्स हैंडल करते हैं, जो भी सामने से रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ रहा है उसका क्वेरी रिजॉल्व करते हैं, मतलब आंसर्स बोलते हैं. कि कौन से बेसिस पे बोलते हैं, एक प्रोडक्ट का ये लो एग्जाम्पल. एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के बारे में पहले ट्रेनिंग देते हैं वो बीपीओ या एग्जीक्यूटिव को. प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग, ऐसे ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, जो भी इसका बारे में पूछेगा, इसका प्राइस ये है, इतना अवेलेबल है, ये सभी डिटेल्स पहले ट्रेन करते हैं बीपीओ को ऑनबोर्ड के टाइम, ऑनबोर्डिंग, एज पार्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग, राइट. So they will feed the information of that product, right? Also you will be given some past call data. Past calls का कुछ डेटा देते हैं कि this is how, these are the kind of questions you might get. अगर ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर करना है, ऐसे करना है. तो you cannot tell anything from on your own. You cannot tell which the product doesn't, you cannot tell a feature which the product doesn't have, right? So you will be given training while onboarding. Then what you do, you start taking calls. You start taking calls, you start answering the questions, same questions, जो भी आता है सेम, या कोई और क्वेश्चन आता है. तो अगर वो ट्रेनिंग के पार्ट नहीं आता है, then you go to your seniors to ask what is the response that I should be giving, or you will pass on the call to your senior executive. This is normally we do as a BPO. BPO executive, BPO call center का जॉब ऐसे होता है, correct? So how is AI replacing this kind of job? कोई भी बीपीओ एग्जीक्यूटिव को जो ट्रेनिंग देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रोडक्ट, set features of the product, everything, and past call recordings, all these data will be fed to the agent. AI agent बनाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं with all these data. What is my product, what is its prices, what are the features available. और पास्ट में ये कॉल्स का डेटा है, कॉल रिकॉर्डिंग होता है. हाउ यू नो दिस कॉल इज रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर लर्निंग पर्पसेस करके आता है ना कॉल सेंटर जब भी कॉल करते हैं. व्हाट इज दैट, दे आर रिकॉर्डिंग दैट एज अ डेटा. वो किसके लिए, अभी तक क्या होता था, कोई भी नया एग्जीक्यूटिव ऑनबोर्ड हो रहा है तो उसको ट्रेन करने के लिए यूज होता था वो डेटा. अभी क्या हो रहा है, एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए यूज हो रहा है डेटा. वो सारा डेटा एक एजेंट को ट्रेन करना है. बेसिक जो बीपीओ का लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1 का जो एग्जीक्यूटिव काम करता है, वो सारा डेटा उसको डाल के ट्रेन करना है उसको, करेक्ट. सो ट्रेन करने का एक एजेंट बना है. इट विल बी ट्रेन विद द बेस्ट कॉल डेटा. ओके, नॉट ऑल कॉल डेटा, बेस्ट जो कॉल डेटा है, बेस्ट एजेंट. अभी मेरे कंपनी में बेस्ट बीपीओ एजेंट कौन है पता है मुझे, उसका सारा कॉल रिकॉर्डिंग्स वो कैसे हैंडल करता है कस्टमर को, वो कैसे क्वेश्चंस को आंसर करता है. दैट मीन्स आई एम ट्रेनिंग माय एजेंट विद द बेस्ट डेटा. बेस्ट डेटा से ट्रेन किया तो वो एजेंट भी बेस्ट हो गया.
ये गारंटी मुझे ह्यूमंस के पास से नहीं मिलती है. इफ आई एम ट्रेनिंग ऑनबोर्डेड रिसोर्स, आई विल नॉट गेट द सेम गारंटी दैट दे विल परफॉर्म एज माय बेस्ट एम्प्लॉय, right? But the agent is able to do that because it will be able to replicate exactly the kind of data that you are feeding. उसको बेस्ट डेटा से ट्रेन करो तो वो बेस्ट परफॉर्म करेगा. ठीक है, ऐसे एक एजेंट नहीं, ऐसे में 100 एजेंट्स बना सकते हैं विथ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 एम्प्लॉय. तो मुझे फायदा कहाँ है? Will I still depend for level 1 and level 2 call handling on a human, or I'll design agents and then build agents to do the same job, that too in a better way, or 24/7. There's no weekend for it, there's no leave for it, it will not sleep, nothing. So all are advantages. These are all are advantages I am going to get. तो मैं क्या करूंगी? इसको agents को जाऊंगी ना. Obviously I go for agents. Why will I onboard recruit this people for call center? I'll recruit humans there, right? I'll replace with the agents. So that's what is happening. Down the line, all call center jobs are going to go off. कौन रहेगा? कौन रहेगा? जो हायर, जो बेस्ट एजेंट्स हैं, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, जो एजेंट हैंडल नहीं कर सकता है कॉल्स, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, तो जो क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एजेंट नहीं हैंडल कर सकता. दैट्स वेयर आई नीड सम फ्यू पीपल ऑल्सो. 100% तो रिप्लेस नहीं होगा, थोड़ा ह्यूमन फोर्स रहेगा, लेकिन हाउ मच? जहां 100 एम्प्लॉयज थे, आई नीड ओनली 1 or 2 people now. Rest 98 will be my agents. 98 लोगों की जॉब गई. ठीक है, तो ऐसे even your jobs now, right now, developers, fresher developer, उसको सिर्फ कॉलेज में जो पढ़ा है लैंग्वेज वो पता है. ठीक है, पाइथन, सी सब बेसिक पता है. they don't know how to work in a real project environment. उनको पता नहीं है. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? एक एजेंट बना रही हूँ विच इज द बेस्ट कोडर. मैंने बोला ना, इट इज एबल टू डू कोडिंग विच इज इक्वल टू योर बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड. इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के एआई मॉडल्स हैं आजकल. तो व्हाट आई विल डू? आई विल ट्रेन दैट मॉडल विथ माय डेटा. मेरा एप्लीकेशन कैसा है, मेरे एप्लीकेशन का कोड कैसे है, उसको कैसे बनाना है, किस लैंग्वेज में बनाना है, उसका लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है. अगर मैं किसी को ले रही हूँ, हायर कर रही हूँ, दैट गाय विल कम विथ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स. उसको पाइथन आता होगा, रिएक्ट आता होगा या जावा आता होगा. लेकिन यहाँ पे एजेंट्स में बना पा रही हूँ विच नोज एवरीथिंग, ऑल द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड विच इज एबल टू कोड टू बेस्ट कैपेबल, बेस्ट कोड दे रहा है मुझे. तो मैं लेवल 1 लेवल 2 के इंजीनियर्स को क्यों हायर करूंगी, फ्रेशर्स को क्यों हायर करूंगी, व्हेन आई एम हैविंग द एजेंट्स हु आर एबल टू डू द बेस्ट वर्क. समझ में आ रहा है ना? तो ये जो लेवल एंट्री लेवल जॉब्स हैं, ऑल दोज जॉब्स आर बीइंग वाइप्ड आउट बाय एआई एजेंट्स. समझ में आ रही है कहाँ जा रहे हैं? कर क्या करना है फिर? क्या कर सकते हैं फिर? अगर जॉब नहीं है तो क्या करना है? क्या कर सकते हैं? ऐसे स्किल्स डेवलप करो कि एजेंट्स बना सको. एजेंट्स बनाने आना चाहिए ना. एजेंट्स को कोई बनाना होना ना, वो खुद ही नहीं बना सकते. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस अभी तक नहीं है. अभी क्या है? डिमांड किसका है? जो लोग एजेंट्स बना पा रहे हैं, जो कॉल सेंटर एजेंट्स बना पा रहे हैं, जो डेवलपर एजेंट्स बना पा रहे हैं, जो टेस्टर एजेंट्स बना पा रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है कि कहाँ कैसे करना, क्या करना है, किधर जाना है. You are able to realize, right, why there are so many layoffs.
because company don't need that entry level job people anymore. They need people who can automate everything. They need people who can build this kind of automation, these kind of agents. Using what? Using AI technology. उसका हाई डिमांड है. जो ये कर सकता है उसको क्या कोई भी पे स्केल देके हायर कर रहे हैं. मैंने बोला ना 10,000 करोड़. किसी में हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला है ये पैकेज. Mark Zuckerberg offered that package to one person just to onboard him for building AI AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बिल्ड करने के लिए. उस टीम के लिए इसको हायर किया. क्या पैकेज दिया? सिर्फ एक पैकेज. अगर एक काम किया तो बस उसको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं. ठीक है. मे बी लाइक सी, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं. इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. इजी भी बहुत है. योर कोडिंग स्किल्स, your learning programming technology programming skills are much more difficult than learning these skills. AI सीखना और उसको यूज करके ऑटोमेशन वर्कफ्लोज बनाना बहुत इजी है. ओनली थिंग इज यू नीड टू नो हाउ टू टॉक टू द AI एजेंट. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना चाहिए. हाउ यू कैन टॉक टू द agent to get the best possible response. अगर prompt engineering आ रहा है, you know how to talk, you know how to build the agents, you know how to automate the workflows, then you are the best fit for the industry right now. जब AGI आएगा, ASI सुपर इंटेलिजेंस आएगा, तब इनका भी जॉब नहीं रहेगा. ठीक है. तो अभी क्या करना है? अभी फिलहाल ये इतने फास्ट पेस पे चेंज हो रहा है कि we don't know, like even if you become a perfect in building AI workflows, AI agents right now, कल जॉब होगी या नहीं पता नहीं है. इतने फास्ट पेसेस पे चेंज हो रहा है. तो यू नीड टू बी ऑन योर टोज कि सब कुछ सीखो. जितना पैसे मैक्सिमम मेरा कैपेसिटी है उतना. अभी टाइम नहीं, ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप यू कैन सिट रिलैक्स, नथिंग. नो, यू डोंट हैव टाइम. तो इतना फास्ट पेस पे चेंज हो रहा है डे टू डे. इतने मॉडल्स आ रहे हैं, इतने AI टूल्स आ रहे हैं, इतने ऑटोमेशंस हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं कि देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट. देयर इज नो लिमिट टू इट. इट्स गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल. What best you can do, you cannot wait for your degree to get completed. Hadid, you don't know when you complete your degree, you are relevant. वो डिग्री किसी के काम की है या नहीं वो भी पता नहीं. बारिद, सेम गोज विथ यू. हाफिज का अभी चांस है कि वो AI एजेंट से बना के जॉब ग्रैब कर सकता है, उसका चांस है. लेकिन तुम लोगों का अभी बहुत लंबा है पढ़ना. तो डोंट वेट फॉर योर डिग्री टू कंप्लीट. Step in, do freelancing, learn, get your hands dirty. It's not for earning, it's for learning. सीखो. अगर कुछ पैसा नहीं मिलता फिर भी सीखो. प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग, फाइवर साइट्स है, फ्रीलांसिंग साइट्स है, वहां पे जाके देखो कैसे काम चल रहा है. मे बी टुमारो जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को. किसी को जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कोई भी एक कंपनी के साथ टाई अप नहीं रहता है, नहीं रहेगा शायद आगे. They'll work on their own pace. खुद ही जॉब, खुद ही प्रोजेक्ट्स बना के खुद ही अपना काम करा सकते हैं लोग आगे. 9 to 6 job will be no more the case in future. शायद आप एक कंपनी के लिए काम नहीं करोगे. You will be working for multiple projects for multiple companies, different companies. You will be your own boss. वैसे जमाना आने वाला है. And it's not far off. दूर नहीं है वो. It's just here today, tomorrow. Can happen anytime. Only question is how prepared you are for that kind of a job and kind of a role. आगे बच्चे 9 to 6 एक कंपनी के साथ नहीं रहेंगे. Because there are lot of, only limit is on your imagination.
आप कितना अपनी सोच को एक्सपांड करते हो, हाउ कितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उतना आपका जॉब रहेगा। जितना छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना छोटा इनकम, जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा इनकम। ट्वेल्व ईयर्स 13 ईयर्स के बच्चे, दे आर अर्निंग ए लैक्स using AI and automation. They are building these agents and selling to companies. And we are still waiting for our degree to get completed. You see what is happening in the market right now. देखो जाके क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एजेंट्स बना रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनको कोई भी कितना भी पैसा देके हायर करने के लिए रेडी है। ठीक है, सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम। करना है, कुछ करना है तो आज स्टार्ट करना है, बस टाइम नहीं है, वेट नहीं करना है। मटेरियल जो भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर फॉर यू, आई गेट दैट फॉर यू। ओके, जो भी मटेरियल्स, आई शो यू द वे पाथ, वॉकिंग ऑन दैट इज लेफ्ट टू यू। आई शो यू द डायरेक्शन, टेकिंग दैट रूट इज अप टू यू। ठीक है, सो विल डू इट। यस, Inshallah. Yes, inshallah. from next section onward. Okay, I want your commitment. Okay, I want your commitment. Don't waste the hard-earned money of your parents. ओके, क्योंकि डिग्री कोई भी काम की नहीं है आगे चल के, वैसे जमाना आने वाला है। वेस्ट नहीं जाना, जो मेहनत आप कर रहे हो वेस्ट नहीं जाना है। पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स। मेहनत हमारे हाथ में, करना है। क्या करना है? मेहनत करना, मेहनत करना। सही अब बात दीवार पे एक दीवार है, उसमें कील ठोकना है। शार्प एज रख के ठोकोगे तो जाएगा ना, या ब्लंट एज रख के ठोकोगे, कितना भी ठोको नहीं जाता है। हाँ, तो राइट स्किल के साथ अप्रोच करेंगे तो मिलेगा ये रिजल्ट। और तुम आउटडेटेड स्किल के साथ कितना भी एफर्ट्स डालो जॉब ढूंढने का, नहीं मिलता है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है किसी को। डिग्री है, उसके साथ ये स्किल्स हैं, देन इट इज गुड, बेस्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते। ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू प्रिपेयर स्लाइड्स, आई विल ट्राई टू गेट यू द डॉक्यूमेंट्स, okay, which you can refer, and then we'll get going on it. Okay, and during this 1 week I want your commitment to learn that technology. ऐसे नहीं कि एक सेशन किया फिर नेक्स्ट संडे तक कुछ नहीं किया। अभी पता चला एआई क्या है, ठीक है, एआई मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे बना रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। सो दिस होल वीक यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग इन एआई। स्क्रॉल करना बंद करो, बिल्कुल बंद। टाइम वेस्ट बिल्कुल बंद करो। स्क्रॉल करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो इसके ऊपर कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है, क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ जॉब, यू कैन डू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करके एक एजेंट बनाओ जो कि एक बड़े बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो बिजनेस खुद अप्रोच करेगा तुमको प्रोजेक्ट लेने, एजेंट लेने के लिए। कॉल सेंटर के एजेंट्स बना के बेच रहे हैं लोग। ठीक है, तो वो सर्च करो क्या चल रहा है मार्केट में, एआई क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। नेक्स्ट वीक यू कम एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, then we'll see how we can do it. Okay, I'll give you all the materials, all the links, all the required information. I'll guide you, mentor you, but efforts should be from your end, beta. कर दो। Okay,
Sunday we Hmm. will again regroup. We'll see how we can take it forward. Okay. Okay. Samir, you're good? Solia, good? Okay. Catch you next session. Thanks for your time. Hope I made some sense to you guys. And it हाँ was useful. हाँ Okay. thank you for today's session. चलो मिलते हैं.